evening, Very good everyone. evening. We are going live, so just a humble request, Very good evening. Rita, just mute. Good evening. बोल दो। Sir, can we start? So we have to unmute himself because I've muted Punya, everybody. Mute yourself. Punya sir. Punya sir, just unmute yourself. Punya sir, you have to unmute yourself. Sir, you have to unmute yourself. Sure, ma'am, sure. I'm already Done. unmute. Done, done. Yes, now you're audible, sir. I'm already unmute. Yeah. Okay. So, good evening, everybody. Welcome back to Rapid Talks with Rachna. I welcome and greet you virtually because, as we have to, you all are aware, we have to maintain social distancing, and it's almost a month that we have. I think we have started more than a month that Rapid Talks with Rachna. So, just a short brief about Rapid Talks. Rapid Talks with Rachna is an initiative by Fun to Learn. Fun to Learn is a 15-year-old organization, ISO certified organization, which deals with handwriting improvement in just 10 hours. The USP of the program is improvement in 10 hours, no homework and without tears, and 100% guarantee, irrespective of the age. Our eldest student till date is 75 years of age. And doctors, we have done workshops for doctors and engineers because in 2012 there was an article in newspaper saying engineering students with bad handwriting may get zero. And in 2013 there was an article in the newspaper saying that Indian doctors have been advised to write in capital letters. So you all know the answers for this. And handwriting, as I have already discussed earlier, handwriting, your handwriting is your personality. What you think when you pen it down, it comes down. Along with the handwriting program, we are also into speed maths, making students' mind sharper than a calculator, Johnny Phonics, calligraphy, and other courses. So far, we have trained 1,25,000 students. Now, today we will be discussing on the interpersonal skills. How important is the interpersonal skills important for the students? Now, when we talk about students and interpersonal skills, we have Mr. N.S. Punia. He is a founder principal of Chandrashini Vidyapith, Chhattisgarh. He is also a certified psychologist and a motivational speaker. Have good experience of 16 years in education and training, and has been awarded by Dr. APJ Abdul Kalam Azad Award, Best Principal IIT Drona Education Award, Dynamic Principal Award, and many more as a token of appreciation and key speaker. And he is also a founder member of many more organizations. Now, just to brief about interpersonal skills. What do you mean by interpersonal skills? Interpersonal skills are the skills we use every day when we communicate and interact with other people, both individually and in groups. They include a wide range of skills such as listening and effective speaking. They also include the ability to control and manage your emotions. So over to you, Punya sir. Would you like to brief anything about yourself, or we start with the session? We can start with the session, ma'am. Directly, there is no problem. Okay. So my first question to you is, what is interpersonal skills exactly, and why it is important? So, first of all, very grateful to you, ma'am, that you have invited me such a wonderful platform. And even we are looking for the change also, and there are so many things you have covered that your company, or you can say your organization, is covering in this one. So, first of all, I would like to start with the topic. The main topic is today. Our topic Hello. is so जिसको हम पारस्परिक पारस्परिक कौशल भी बोलते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कौन कौन सी स्किल्स हम लोगों को पता होनी चाहिए। अभी तक तो क्या था कि जितना भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें बुकिश नॉलेज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था। बच्चे के अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट करना एक सेकेंडरी माना जाता था। बट आज के टाइम पे स्कूल्स भी कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स हैं,
या सीबीएसई स्कूल्स आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं कि बच्चों की जो दूसरी स्किल्स हैं, जिनको हम इंटरपर्सनल स्किल्स के नाम से जानते हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाए, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में, और वो कौन कौन सी ऐसी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप की जा सकें इजीली। तो मैं आज आपके साथ उन्हीं चीजों पे बात करना चाहता हूँ। सो डेवलपिंग इंटरपर्सनल स्किल्स is really important for students Sir, for a better learning, sir, just a expressing second. themselves to others. Yes, ma'am. Just a second. Nita, please Am I mute on? everybody. Yeah, Yes, ma'am, I'm going to mute everybody. Then you and yeah. sir, please unmute yourselves. Yes, sir. Thank you, sir. Let Thank you, Okay. sir. everybody and then you unmute yourself. Okay, now okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Perfectly Thank okay. you. Thank you. Okay, okay. Thank you so much. So I was discussing about developing interpersonal skills is really important for students for the better learning. You can say academic or non-academic. Expressing themselves. कई बार बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बच्चे को यही नहीं पता कि खाना कैसे है, अपने आप को बिहेव कैसे करना है, अपनी ड्रेस सेंस को कैसे रखना है, कैसे इन द सेंस यू कैन से पानी कैसे पीना, ये छोटी छोटी चीजें भी उनके अंदर आती हैं। एंड इम्प्रूविंग एकेडमिक्स टू। सो ये पूरा एक मिक्स जिसको आप कह सकते हैं, ये पूरा एक इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर ही आता है। सो इट इज कंसीडर्ड दैट स्टूडेंट्स who have good interpersonal skills, जिनके पास अच्छी पारस्परिक कौशल हैं, उनका करियर सक्सेसफुल करियर होता है एंड इंडिविजुअली उनका जो जीवन है वो भी सक्सेसफुल रहता है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों का वही है कि कैसे अपने आप को डेवलप करना और ये चीज क्या होती है। इससे पहले कि हम इंटरपर्सनल स्किल्स की इंपॉर्टेंस को समझें, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स। तो मैम ने भी आपको बताया, रचना मैम ने जैसे अभी डिस्कस किया, इंटरपर्सनल स्किल्स आर द क्वालिटीज, दीज आर क्वालिटीज एंड बिहेवियर्स। जो आपका बिहेव है दूसरों के लिए, वो आपकी क्वालिटीज और बिहेव जो एग्जिबिट करते हैं, आप दर्शाते हैं, दूसरों के साथ आप बातचीत करते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। जब आप दूसरों के साथ बातचीत करते हैं तो जो आपकी क्वालिटी है या आपका जो बिहेव है, व्यवहार है, वो आपका इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर काउंट होता है। अब पॉइंट ये आता है कि हमें ये पता होना चाहिए अगर हमारा व्यवहार अच्छा है या हमारा व्यवहार बुरा है, तो ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं कि हम वो अडॉप्ट करके अपने अंदर इंकलकेट करके उसके ऊपर एक्शन करके हम अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को अच्छा बना सकते हैं। तो वन ऑन वन आई विल डिस्कस अबाउट देम। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स बट सम मेन we'll discuss. So first one is that is listening. There is always good quote about this listening. Listening means सुनना। एक होता है hear, एक होता है listen. Hear means आप बात को सुन रहे हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, बट लिसनिंग ध्यान से सुनना कहा जाता है। अब बच्चे को भी बोला जाता है एक अच्छे लीडरशिप के अंदर जो टीचर्स होते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि जो अच्छे स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं वो हमेशा ये बोलते हैं कि एक कहने का पर्पज ये कि यू कैन बी अ गुड स्पीकर, इफ यू आर अ गुड लिसनर यू कैन बी अ गुड स्पीकर। अगर आप एक अच्छे श्रोता हैं तभी आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। स्टूडेंट्स को इसमें एक्टिव करने के लिए प्रॉपर अटेंशन के साथ जब वो बच्चे की क्लास में होते हैं वो सुनना चाहिए। शिक्षक पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता उसको रहती है। सो जनरली क्या रहता है, टीचर्स नोट्स बच्चों को देते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट्स ओरली बताते हैं, और उसके बाद भी बच्चा अगर अटेंटिवली उनको नहीं सुनता है तो वो उनके दिमाग से उतर जाते हैं, उनको ध्यान नहीं रहते हैं। अगर वो अच्छा लिसनर है तो वो उसको अंडरस्टैंड करके उस चीज को समझ के अपने डाउट्स को बाद में टीचर के सामने रख सकता है और सुन भी सकता है। अब दूसरा पॉइंट आता है वर्बल कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट वन इज वर्बल, जो बोल के बताई जाती है, एंड अनदर कम्युनिकेशन दैट इज नॉन वर्बल, जिसको आप मौखिक बोलते हैं। जैसे आपका हिंदी लैंग्वेज होती है उसके अंदर आता है मौखिक और लिखित, और उसके बाद एक और
सांकेतिक जिसको भाषा बोल सकते हैं। तो वर्बल के अंदर मौखिक आता है स्टूडेंट्स को खुद अपने आप रिप्रेजेंट करने के लिए टीचर्स के साथ बात करना, पेरेंट्स के साथ बात करना, ये आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है। इसको डेवलप करना चाहिए, बातचीत को बढ़ा के रखना चाहिए। कई बार क्या रहता है बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी उसको आना चाहिए। ये भी क्या है कम्युनिकेशन का ये भी एक पार्ट है। जैसे बच्चा इशारों में समझा सकता है या सांकेतिक भाषा में समझा सकता है। आपने कभी अगर विजिट किया हो एक ऑर्फनेज या आप किसी गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल में जाते हैं तो वो क्या करते हैं सांकेतिक भाषा में बात करते हैं। मूवीज भी आती हैं तो उससे क्या रहता है कि बच्चे की ऑटोमेटिकली क्या रहता है अगर वो प्रैक्टिस करता है तो उससे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो एक इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। चेहरे के फेस जेस्चर्स जिसको आप बोल सकते हैं कि बच्चा फेस से ही बाय चांस आपने बच्चे से पूछा आप कैसा फील करें वो ऐसे बोल सकता है, या आपने पूछा कि व्हाट इज द टेस्ट ऑफ खाने का टेस्ट क्या है उसको नहीं सुनता तो वो अपने जेस्चर्स के साथ साथ उस चीज को क्या कर सकता है बताता है। वो एक इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर ही आता है, उसको डेवलप करने की जरूरत होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बात करना चाहता हूँ टीम वर्क। अब बच्चे क्या आते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे जब स्कूल के अंदर जाते हैं बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं कि नया एडमिशन हुआ है क्लास में जाते हैं और जाते ही वो आराम से बैठकर बातें किसी से नहीं करते हैं और पूरा दिन गुजार के पूरा दिन वो स्पेंड करके क्लास से घर पे आ जाते हैं। और घर पे आने के बाद क्या रहते हैं मम्मी पूछती है स्कूल कैसा रहा तो बोलते हैं अच्छा नहीं रहा मेरे से किसी ने बात ही नहीं की। तो वहां पर क्या है पेरेंट्स का है या फिर टीचर्स का है उनकी एक ड्यूटी होती है कि वो बच्चे के अंदर एक टीम वर्क स्पिरिट उसके अंदर जनरेट करें क्रिएट करें। उससे बच्चा जब भी बाहर जाता है नए माहौल में जाता है तो वो अपने आप को एडजस्ट कर पाता है, टीम का हिस्सा बन सकता है। क्लास के अंदर बच्चा कोई एक्टिविटी टीचर्स कराते हैं, टीचर्स जब एक्टिविटी कराते हैं तो कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपने आप विलिंगली पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ बच्चे जब तक आपको इनवाइट उनको नहीं करेंगे तो वो उस टीम का वो पार्ट ही नहीं बनते। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से भी और टीचर्स जो भी सुनते हैं कि वो बच्चों को हमेशा एक ग्रुप के अंदर काम करने की आदत डालें, उनको एक सेंस सिखाएं कि टीम जो होती है टीम जब काम करती है हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए और जो हमारे अंदर जो क्वालिटी am I audible man? I think everything is okay. Some noise So is coming from the background. yes, तो पेरेंट्स का या स्पेशली मदर का ड्यूटी रहती है कि वो बच्चे को घर में जब रहते हैं किसी के साथ भी बैठते हैं वो एक कोई ऐसे टास्क घर में रखे कि सब उनको मिलजुल कर कंप्लीट करें ताकि बच्चे के मन में एक भावना है कि टीम के बगैर अच्छा काम नहीं होता है। और अगर हम है इसके लिए काफी स्टोरीज भी हैं, एकता में बल है, बहुत सारी पुरानी स्टोरीज भी मिलती है। सो नेक्स्ट मैं जिस इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करता हूँ दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। ये बहुत कम लोगों को समझ आती है कि क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है। आज के टाइम पे क्या है कि जब बच्चा क्लास में कम्युनिकेट करता है या घर में कुछ कम्युनिकेट करता है वो जब नए नए आइडियाज लेके आता है जिसको हम कई बार बोलते हैं क्या बात करें बड़ा रब्बिश है तुम्हारे पास यही बातें होती हैं। इसमें मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और वो थोड़ा पर्सनल एग्जाम है। मेरा बेटा जब भी जाता हूँ तो वो क्वेश्चन की क्या करता है पूरी झड़ी लगा देता है। उसका एक फेवरेट वर्ड है आरसी रिमोट कंट्रोल। तो वो आरसी में ये लगा देंगे बाइक में पीछे ये लगा देंगे, अगर एरोप्लेन का इंजन बाइक में लगाते हैं या छोटी कार में इंजन लगाते हैं तो वो क्रिएटिविटी के अंदर आता है, पूछता रहता है। तो हमारे जो बच्चे होते हैं एज ए टीचर एज ए पेरेंट्स अगर वो इस टाइप की बातें पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस उनके अंदर रहते हैं उनके अंदर कीननेस जो रहती है उत्सुकता जानने की तो वो हम लोगों को सुनते रहना चाहिए। तो उसको क्या रहता है एक मोरल सपोर्ट मिलता है कि मेरे पेरेंट्स सुनते हैं तो ठीक ही होगा। अगर आप उसको स्ट्रेट वे जाकर उसको रिजेक्ट करेंगे तो क्या करेगा बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज है वो पेरेंट्स सुनना नहीं चाहते हैं, दूसरी क्वालिटीज मेरे अंदर है नहीं, मार्क्स मेरे आते नहीं है तो मैं तो अच्छी काम का नहीं। तो बच्चे के अंदर एक क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है वो हम लोगों को डेवलप करनी चाहिए। उससे क्या रहता है कि जब बच्चा बाहर जाता है स्कूल के अंदर जाता है तो वो अगर घर पे भी हम फोकस करते हैं तो स्कूल के अंदर असाइनमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स पे वो काम करता है
जब बाहर स्कूल के बाद जब बड़े स्कूल में जाता है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। लेकिन हमें ये बेस लेवल से, अपने घर से, अपने स्कूल से स्टार्ट करना चाहिए कि बच्चे की जो क्रिएटिविटी है उसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स हम काउंट कर सकते हैं या मान सकते हैं दैट इज हेल्पिंग अदर्स। इसका एक दूसरा, कल मैं एक सेमिनार में था जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे थे, इसमें दो वर्ड थे, एम्पैथी एंड सिंपैथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चों में क्या रहता है, इसकी काफी प्रॉब्लम रहती है, वो इसको जनरेट नहीं कर पाते, इसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपके बच्चे, इसको दया की भावना बोल सकते हैं कि अगर कोई, आप किसी को मुसीबत में आप किसी को देखते हैं, आप रोड पे हो सकते हैं या किसी एनिमल को आप देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कोई डॉगी है जो नाली में गिर गया है या उसको कोई चोट लगी है, तो एक छोटा सा सिंपल सा रहता है कि हम साइड में जा रहे हैं और बोलेंगे देखो कितना बुरा हो रखा है, बेचारा नाली में गिरा हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज सिंपैथी, उसको सहानुभूति बोला जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर उससे थोड़ा सा, अगर हम उससे आगे निकले, उसको बोला जाता है एम्पैथी, कि हम पर्सनली पेन लेके, और अगर हम उस डॉगी के बच्चे को, उसको पिल्ले को अगर नाली से निकाल कर उसको नहला दें, उसको थोड़ा सा पानी पिला दें या उसको थोड़ा सा फूड अरेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। तो अगर हम खुद एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर अगर ये सारे काम करेंगे तो क्या होगा कि हमारे बच्चे सिंपैथी से एम्पैथी की तरफ जाएंगे और बच्चे के अंदर दया भावना होगी। और आज के टाइम पे अगर आज काफी एग्जांपल ट्रेंड कर रहा है ट्विटर के ऊपर, अगर आपने सुना हो तो केरल में एक जो हाथी एलिफेंट है उसकी डेथ हुई है, तो वो एक लैक ऑफ एम्पैथी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। सिंपैथी सब कर रहे हैं कि बेचारी को अनानास किसी ने खिला दिया है, लेकिन उस टाइम पे सिंपैथी सबने दिखाई, पहले भी दिखाई होगी, लेकिन अगर हेलो सर यू आर ऑडिबल, वी आर हेलो, लेकिन अगर उसी टाइम पे, okay, because sometimes there is one error on my screen that your connections are unstable, that's why I'm worried yeah. about that one. Yeah, in between it is cracking, but that is due to signal issue, so I was not telling you. And you know, nobody can help them, and even I'm always facing this problem everywhere. So That's we were what- talking yeah, about and you empathy and can- sympathy. Yeah. तो बच्चों को हमें ये सिखाना पड़ेगा कि सिर्फ एक सहानुभूति दूर से नहीं रखना है, उस सहानुभूति को फील करना है। मदर टेरेसा हमेशा बोलती थी कि अगर आप दूसरों के लिए सिंपैथी रखते हैं, प्रैक्टिकली उनकी सेवा नहीं करेंगे, यू आगे रखेंगे, तो आपको उन भावनाओं को, उन सहानुभूति को समझना मुश्किल हो जाएगा और आप तब तक एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे पेरेंट्स, अच्छे टीचर नहीं बन सकते हैं। तो आज के टाइम पे दूसरे की भावनाओं को समझने की आवश्यकता है और ये बच्चों को हम ही सिखा सकते हैं, क्योंकि बच्चे, उन्हें उनके साथ अच्छे से संबंध बनाने में मदद भी मिलती है और जब भी उन्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो उन्हें दूसरे को मदद करने के लिए भी प्रेरित होना पड़ता है। तो ये एक और अच्छा आपका इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है। सो नेक्स्ट मैं आपकी बात करता हूँ, नेक्स्ट इंटरपर्सनल पारस्परिक, जिसको आप कहते हैं परस्पर एक दूसरे के साथ जो स्किल्स हैं, उसको बोला जाता है ह्यूमर, या जिसको बोल सकते हैं सोशल। कोई बच्चा होता है, अब कई बार क्या रहता है कि बच्चा, या घर में आप सोच सकते हैं कि हम जब बच्चे के साथ मजाक करते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे आपने देखा होगा, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो मजाक करते भी रहते हैं, आप उनको कुछ भी बोलो वो हंसते रहते हैं। तो आज के टाइम पे हंसना जिसको, या ह्यूमर जिसको बोलते हैं, हास्य, बहुत सारे बच्चे या पेरेंट्स देखते हैं कपिल शर्मा का शो, उसमें कुछ भी बोलते रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, लेकिन वही सिचुएशन अगर हम घर में रखते हैं तो हम छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाते हैं। तो हमें बच्चों को अपने दोस्तों और या कहते हैं फैमिली के लिए सामाजिक रूप से उपलब्ध होने की आवश्यकता होती है। मतलब कि इसमें कह सकते हैं कि विश्वास बनाना होता है। विश्वास अगर हम बना के रखते हैं, बच्चे को जोक सुनाते हैं, उसके ऊपर कोई कमेंट करते हैं, वल्गर नहीं होता, बच्चे उस ह्यूमर को सीखते हैं और हाजिर वीटी भी बनते हैं।
अब एक काफी नेक्स्ट जो मैं पॉइंट लेने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लीडरशिप स्किल्स। अब इसका काफी लैक रहता है, बच्चे जब भी उनको कोई टास्क देते हैं, जब भी स्टूडेंट्स को हम किसी ग्रुप के लिए प्रेरित करते हैं या ग्रुप एक्टिविटीज के लिए उनको बुलाया जाता है, तो उनको पार्टिसिपेट करने की जरूरत होती है। तो उनमें आत्मविश्वास से अपनी टीम के लिए हर कार्य में भाग लेने की आवश्यकता होती है। दैट इज कॉल्ड एज लीडरशिप। कुछ बच्चे अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, तो बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उसको टास्क देना चाहिए, उसको सिखाना चाहिए कि कैसे उस टास्क को टीम वर्क के साथ करना है और कौन कौन सी स्किल्स लीडरशिप के अंदर आती हैं। तो बच्चे क्या है, अपने एम्स को अटेन करने के लिए अपनी जो टीम के सदस्यों का या उसके जो टीम मेंबर हैं उसको करने में सक्षम होता है। Excuse me, इसमें sir, 1 minute. हमें 1 minute, yes, sir. Ma'am, I want to unmute everybody because there's so much disturbance and I can't mute somebody. सब 1 minute, मैं सबको म्यूट करती हूँ, then I will unmute you. Okay. Okay, I'm okay. changing the option. So sir, Yeah. just 1 minute. Okay. Just give me 1 minute. sure, sure. Take your time. Neeta, Yes, ma'am. I have muted everybody. Just see if you can unmute, sir. Yeah, sir is unmuted, ma'am. I'm already unmuted, ma'am. Okay, sir. Yeah. Thank Then you you so can much. continue. Yeah. Should we start now? Yes, Yes. sir. Yes, sir, please. Okay. So आज के टाइम पे क्या है, स्कूल्स के अंदर एक बहुत अच्छी एक्टिविटी चलती है। बच्चों को लैंग्वेज मॉनिटर बना दिया जाता है, बच्चे को कैप्टन बनाया जाता है, बच्चे को वाइस कैप्टन बनाया जाता है, हेड ऑफ बॉय हेड बॉय बनाया जाता है, हेड गर्ल बनाया जाता है, या आप कह सकते हैं कि मेन मॉनिटर बनाते हैं, हाइजीन मॉनिटर बनाते हैं। तो ये सब स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप करने के लिए स्कूल बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो एक पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि वही एक्टिविटीज, उसी टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम एज ए पेरेंट्स घर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे को आपने टास्क दिया, बच्चे को टास्क देने के बाद उसको इंटरफेयर नहीं करना है, बच्चे को बीच बीच में टोकना नहीं है, बच्चे को इंटरफेयर नहीं करना है, उसको टास्क देने के बाद वेट करना है कि वो अपने टास्क को कैसे कंप्लीट करता है एज ए टीम लीडर। और टास्क कंप्लीट होने के बाद हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव इनपुट्स दे सकते हैं। उससे बच्चा ऑटोमेटिकली चीजें सीख जाएगा कि लीडरशिप के अंदर क्या क्या चीज आती है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इंटरपर्सनल स्किल के, दैट इज कॉल्ड एज पेशेंस। अब पेशेंस की मैंने कल भी एक स्टोरी सुनाई थी और आज फिर मैं उस चीज पे करता हूँ। पेशेंस होता क्या है? पेशेंस, मुझे ऐसा लगता है कि आज की लाइफ में पेशेंस ही सबसे कम है जो लोगों में नहीं मिलता है। Right, sir. राइट मैम? और तो क्या अगर पेरेंट्स भी नहीं है? पेरेंट्स भी हाँ, पेशेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो मैं सबसे ज्यादा फोटो जो मिस करता हूँ पेशेंस का, जो देखता हूँ, वो भगवान कृष्ण का है। आप कभी भी देखेंगे वो सबसे पहले तो मुस्कुराते हैं, स्माइल करते हैं। तो पेशेंस का सबसे बड़ा एग्जांपल है। कोई भी सिचुएशन है, कैसी भी प्रॉब्लम है, तो जब तक आप अपनी लिसनिंग स्किल्स नहीं बढ़ाएंगे, पेशेंस आपके अंदर नहीं आएगा। एज ए प्रिंसिपल जो मैंने फेस किया है कि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ कि मेरे सामने बच्चे आ जाएं या मेरे सामने टीचर्स आ जाएं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले सामने वाला बोले। लेकिन जब पेशेंस की कमी होती है तो हमारे अंदर क्या हमेशा एक जल्दी रहती है कि सामने वाले से पहले मैं ही अपनी बात खत्म कर दूं। तो पेशेंस के लिए, पेशेंस जिसके अंदर होती है वो सबसे पहले सुनता है और उसके पास कुछ इनपुट्स आ जाते हैं, उनके बेस पे सामने वाले को अच्छे से टैकल भी कर सकता है, अच्छे से हैंडल भी कर सकता है। आज के टाइम पे इसमें पेशेंस में दो मेन पॉइंट आते हैं कि एक होता है रिएक्शन, एक होता है आपका रिस्पॉन्स। कल भी स्टोरी बताई थी कि एक कॉकरोच होता है, वो एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और बेचारा ठंड थी बाहर, तो अंदर चला जाता है, तो किसी की छत पे बैठता है, वहां से वो एकदम से डर के चिल्लाते हैं, चिल्लाने के बाद वो उड़कर फिर से दूसरे की छत पे बैठ जाता है,
वहां से वो फिर चिल्लाते हैं और वो तेज करते हैं। अच्छा एग्जाम्पल था, एक रेस्टोरेंट के अंदर एक अटेंडेंट है, वो पास में खड़ी होती है और वो बेचारा उड़कर उसके पास बैठ जाता है, उसकी शर्ट के ऊपर। वो उसको आराम से पकड़ती हैं, होल्ड करती हैं और उसको बाहर छोड़ के आ जाती हैं। तो ये क्या है कि आज के टाइम पे सबके पास टाइम नहीं है, वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं, बूढ़ों की तरह बैठे रहते हैं। उनको कोई बोले तो वो सुनने से पहले रेडी रहते हैं, जवाब देना है। तो अगर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं तो हम अच्छे पेशेंस हमारा नहीं है, तो हमें पहले सुनना है, फिर उस पे इंटरप्रेट करना है और उसके बाद रिप्लाई करना है। दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स के लिए हमें फोकस रखना है और वही पेशेंस है और वही बच्चों को सुनाना है, वही दिखाना है, वही समझाना है। और अगर आप बच्चों को पेशेंस सिखाना चाहते हैं, सो आई रिक्वेस्ट एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, जब तक आप प्रैक्टिकली दूसरे को नहीं सुनेंगे वो आपको कभी नहीं सुनेगा। वो पेशेंस है। यू हैव टू सेट द एग्जांपल्स। आपको एग्जांपल सेट करना पड़ेगा कि हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, उनके अंदर पेशेंस है तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आएगा। इट इज गिव एंड टेक, प्रैक्टिकल का जमाना है। सो अगली मैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करता हूँ उसको कहा जाता है पब्लिक स्पीकिंग। अब प्राइवेट स्कूल्स काफी मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी मेहनत कर रहे हैं, सीबीएसई भी मेहनत कर रहा है, स्टेट बोर्ड भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी पब्लिक स्पीकिंग जिसको कह सकते हैं, उसमें मेन रहता है कि बच्चा प्रेयर स्कूल के अंदर करता है, ग्रुप सॉन्ग की तैयारी करता है जब अपने कोई फंक्शंस होते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग का सीधा सा मतलब होता है कि बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग सीखने की जरूरत होती है और वो जैसे जैसे सीखता है तो डिबेट के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है, या ग्रुप सॉन्ग के अंदर वो पार्टिसिपेट करता है, या प्रेयर के अंदर पार्टिसिपेट करता है, राइटिंग कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो इनमें पार्टिसिपेट करके वो अच्छा स्पीकिंग वो कर सकता है, वो समझ सकता है। यह अगर वो पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से कर सकता है या स्टेज पे बोल सकता है तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसमें धीरे धीरे ग्रेसफुली क्या रहता है, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है। जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या करेगा, शुरू हो जाता है। तो मैं एज ए प्रिंसिपल अपने स्कूल में नर्सरी क्लास के बच्चों पर भी इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल करता हूँ कि नर्सरी क्लास का बच्चा भी हमारे स्टेज पे आकर कैसे माइक को पकड़कर ऐसा लगता है जैसे वो पता नहीं पिछले 3-4 साल से ही स्पीकिंग कर रहा है। तो ये चीजें हैं कि एज ए पेरेंट्स, फिर से वही एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए स्कूल ओनर, बच्चों को हमें जब तक इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम नहीं करेंगे, जो मैंने अभी डिस्कस किया आपको पसंद भी आए होंगे, तो हम एकेडमिक्स पार्ट को अच्छा नहीं बना सकते। एकेडमिक्स पार्ट जो होगा वो आईक्यू लेवल का आ जाता है। आईक्यू में हम सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन अगर ईक्यू लेवल के जो मैंने आपको डिस्कस किया है, ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बढ़ाएंगे तो जब तक दोनों मिक्सअप नहीं होंगे, पैरेलल नहीं चलेंगे, तो बच्चा सक्सेस नहीं हो सकता, वो एक अच्छा अचीवर नहीं बन सकता। ये Right. कुछ पॉइंट्स थे। जी मैम। Yeah. Anita, first I would like to say कि just mute Sabha Sayyed. Sabha Sayyed, please mute yourself. There is lot of background noise coming. So sir, अभी Okay. आपने जो हमें इतने interpersonal skills के बारे में बताया, so I will just take 10 seconds. And now the question comes to the viewers कि पुनिया सर ने कितने टाइप के interpersonal skills बताए हैं? Just put down your answer fast. And whoever gives the right answer, he gets the chance to question Punya sir at the end. So I want to see कि पुनिया सर ने अभी जो interpersonal skills के बारे में बात किया, how many types of interpersonal skills he spoke. Sir, one has written 5, 7, another one has written 7. Very good. मैंने प्राइवेट में किया हुआ है because then there is lot of disturbance at the Good. Yes, so even it will disturb me also. That's why I'm saying that I am not able to see even a single SMS. No, I don't want my speakers to get lost reading the message. Good one. Thank So, you so much. see, most of them have written 7 or 5. Now you tell me, even I have written the points and I know the answer, but I would like to hear from you. Hello.
Anita, just see again. Somebody has unmuted. Humble request, please do not Yes, ma'am, unmute yes. yourself. Sir, which is the right answer? 5 or 7? मैम 7 इज अप्रोक्सीमेटली देर इज Correct. Yeah. थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो Yeah. मैं मैंने भी 7 points ही लिखे हैं. जी जी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ 9 points. Sir, I wrote 9 points. That means everybody यस is wrong. Not 8 भी yet. ठीक है क्योंकि मैंने अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे वर्बल नॉन वर्बल दो हो सकते हैं उसको Then एक में भी काउंट कर सकते हैं तो हाँ. ऑलमोस्ट 8 9 बोथ आर करेक्ट Right. So, sir, देखिए मैं ही सबसे ज्यादा सुन रही हूँ. मैंने 9 जी मैम points जी लिखे and including non-verbal it is 10. Okay, so for this question nobody gets a chance to ask you a question. Okay, so my next question is how can students, अभी जैसे आपने अलग अलग तरह के interpersonal skills के बारे में बात की, so how can the students they improve their interpersonal skills? थोड़े बहुत आपने एग्जाम्पल के साथ बता भी दिए, बट इफ यू ब्रीफ कि कितने तरह के इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो स्टूडेंट्स कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? आपने डिस्कस भी किया कि पेरेंट्स के साथ हो जाएगा, बट बाकी और इस पे आप थोड़ा और लाइट डालिए सर. मैं अभी इंटरपर्सनल स्किल्स की बात की है तो मैं बता देता हूँ इसका बेनिफिट्स कहाँ कहाँ मिलता है. अब ये तो हो गया कि ये स्किल्स हैं हम ऐसे ऐसे जनरेट कर सकते हैं सो इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है. अब कुछ चीजें होती है कि क्वेश्चन का भी जवाब दे रहे हैं. चलिए अच्छा है, Yes. पूरे मिक्स हो जाएगा. yes hardly it will take 5 minutes maximum. Yes, please sir, we are ready to hear. We are Yes. learning. अब क्या रहते हैं कि मम्मी ने बताया कि करेला खाना चाहिए सर ने बताया कि हमें ज्यादा लिख लर्न करना चाहिए दादाजी बोलते हैं कि रोजाना दूध पीना चाहिए. तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है पता तो सबको है लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है तो you know what are the interpersonal skills. अब आपको ये भी समझ आ गया कि वो होती क्या है. अब आपको ये भी समझ आ गया कि इंटरपर्सनल स्किल्स कौन कौन सी है. नाउ हम क्यों सीखें क्योंकि एक मोटो होता है कि व्हाई और बच्चों का सबसे मेन क्वेश्चन होता है क्यों. आपने इतनी सारी बातें बताई जी क्यों. सो मैं बताना चाहता हूँ कि what are the reasons to learn or to develop the interpersonal skills for the students. So it helps them to ask their doubts from teachers and learn better. ये क्या रहता है कि बच्चे अगर इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करते हैं तो वो क्लास टीचर से अपने डाउट्स को अच्छे से पूछ सकते हैं. उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो वो अपनी बात को रख सकते हैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. That's why we have to develop our interpersonal skills. दूसरा क्या रहता है उनके अंदर एक गुड रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हेल्प मिलती है. इसके साथ अपने पीयर ग्रुप्स के साथ जो वो क्लास में होते हैं या आप कह सकते हैं अपने टीचर्स के साथ या आप कह सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या आप कह सकते हैं घर से बाहर सोसाइटी के अंदर जाते हैं दोस्तों के साथ खेलते हैं या अपने से बड़ों के साथ मिलते हैं वहां भी वो अच्छे गुड रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए हेल्पफुल रहता है. These skills helps to boost their confidence and personality development. Personality development कैसे होता है जब तक सामने वाले की बात आप नहीं सुनेंगे सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है. सिंपल सा पॉइंट है. आज के टाइम पे वही अच्छा लगता है जो सुने सुनाने वाला किसी को पसंद नहीं है. तो अगर आप ऐसी सारी स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं तो क्या रहता है कि अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं और वो सामने वाले की आपकी पर्सनालिटी कि देखो मेरा तो एक ही दोस्त है वो सबसे ज्यादा सुनता है. अब अगर बाय चांस इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आप शर्ट लेके आते हैं एक होता है जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होती हैं. दोस्त ने पूछा कि शर्ट कैसी लग रही है वो बोलता बकवास लग रही है मेरी फेवरेट ही नहीं है. तो क्या उसको कोई पसंद करेगा? नेवर. वही अगर जिसके अंदर ये स्किल्स है वो बोलेगा आप लेके आए तो अच्छा ही होगा आपकी चॉइस खराब थोड़ा ना हो सकती है. तो ये सब स्किल्स उसी के अंदर आते हैं कि अगर ये हमारे स्किल्स हैं तभी हम लोगों को लोग पसंद करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है अपने पीयर ग्रुप्स के अंदर भी हमारे दोस्तों के अंदर भी. सो who have interpersonal skills they can express their thoughts ideas and feeling to their parents teachers classmates to get help and support.
अब इनकी अच्छी स्किल्स है इस टाइप की, वो अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं जो उनके ब्रेन में चल रहा है, उनको डर नहीं लगेगा, उनके जो आइडियाज हैं वो शेयर कर सकते हैं, जो उनके अंदर फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स पे कल मैंने काफी बात की थी, जो बच्चे यहाँ वो समझ सकते हैं, सैड, हैप्पी, फॉरगिवनेस, सो मेनी फीलिंग्स आर देयर, तो वो अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं। अगर उनके अंदर ये स्किल्स नहीं है तो जैसे ही पेरेंट्स या टीचर्स उनसे पूछते हैं बेटा मूड ऑफ क्यों है, नहीं मैं तो ठीक हूँ, मम्मी पूछते हैं कोई प्रॉब्लम, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके जेस्चर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या तो स्कूल में प्रॉब्लम फेस की है, या फिर वो बच्चा स्कूल में सैड है तो वो क्या होता है घर पे उसको डांट पड़ी। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटरपर्सनल स्किल जिसके पास है वो सोशल स्टेटस अपना इम्प्रूव कर सकता है। उसमें वही सारी बातें आती हैं इसको सोसाइटी में सब पसंद करना शुरू कर देते हैं। These skills helps them to value the diversity. Diversity means जब हम ये सारी स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो हम हर कल्चर के बच्चे को, हर कास्ट के बच्चे को, हर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंडर्ड के बच्चे को, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, कोई रिच फैमिली से है, तो वो क्या करते हैं सबको इज्जत देना पसंद कर देते हैं। वो पार्शलिटी नहीं करते, कास्टिज्म में नहीं जाते हैं, वो रिलीजन बेस्ड बात नहीं करते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उनको सब अच्छे लगते हैं। तो ये सारी उसके अंदर इम्प्रूव होता है ये चीजें, वो डिफरेंट कस्टम्स क्या करते हैं हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से अगर छत्तीसगढ़ में आया हूँ तो मुझे मेरे कुछ डायरेक्टर सर हैं, पेरेंट्स भी हैं, जो मैंने कभी पिकल नहीं खाया, मतलब मैं ध्यान से सुनना, मैंने कोई पिकल नहीं खाया तो मुझे वो देते तो मुझे अच्छा लगता है। उनके ट्रेडिशंस में यार अगर फॉलो करता हूँ, उनके डांस देखता हूँ, और यहाँ का एक अमरपारा तुहरपारा डांस है, तो मैंने बड़े अच्छे से सीखा और मैंने स्टेज पे भी किया। तो वो इस टाइप की अगर हमें स्किल्स डेवलप करेंगे तो दूसरे की कस्टम्स को हम क्या करेंगे रिस्पेक्ट दे पाते हैं, उसकी जो कल्चर है वहाँ के रीति रिवाज को हम क्या करते हैं एडेप्ट कर पाते हैं, उनको सीख पाते हैं। तो क्या रहता है कि वहाँ ऑटोमेटिकली एरिया में, उस कल्चर में, उस एनवायरनमेंट में क्या हमारे बच्चे अडॉप्ट हो सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, प्यार भी मिलता है, और उनको सब कुछ मिलता है जो उन लोगों को चाहिए। सो लास्ट पॉइंट जो मैं बात करना चाहता हूँ, द स्टूडेंट्स हु हैव इंटरपर्सनल स्किल फॉर हैव दे कैन डेवलप बेटर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर क्या आता है, सॉफ्ट स्किल में आता है कि हम वही चीजें, थैंक यू कैसे कहना है, सॉरी कैसे बोलना है, वो चीजें अंदर से जब निकल के आते हैं, जब हम अंदर से सॉफ्ट होते हैं, जबरदस्ती नहीं कहे जाते हैं, जब हम सुनेंगे, अपनी गिल्टी फील करेंगे, हमारे अंदर पेशेंस भी होगा, तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी और बेटर सॉफ्ट स्किल डेवलप हो जाएंगी, और उसकी वजह से क्या रहता है अगेन वी विल गेट द रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब कंक्लूजन में मैं यही कहूंगा, स्टूडेंट्स interpersonal skills not only help in their educational and school life, वो सिर्फ एजुकेशनल और स्कूल लाइफ में ही हेल्प नहीं करती हैं, बट थ्रू आउट देयर करियर टू, उनका जो लाइफ टाइम का जो करियर है उसमें भी वो बहुत हेल्प करती हैं और उनकी सहायता करती है। एज स्टूडेंट्स develop their interpersonal skills during school, उनका जो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर बिहेवियर, ये अगर वो इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है उनके बिहेव का, उनके जो व्यवहार करते हैं सोसाइटी के अंदर, उनका वो पार्ट बन जाता है। अब मुझे जैसे एग्जांपल लूंगा, मैं ये नहीं कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को आप बोलता हूँ, मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली थैंक यू निकल जाता, तो ये एक बिहेव का पार्ट बन जाता है। और आज के टाइम पे अगर मुझे ऑफिस के अंदर जो पानी पिलाने वाली बाई है, राम भाई उनको कहते हैं नाम उनका, वो भी मुझे थैंक यू बोल के जाने लगे। वो मेरे पास अगर कुछ रखते हैं, कप ऑफ टी रखती है, कप ऑफ कॉफी रखती है, तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, तो वो पहले अपने मन से धीरे धीरे बोलते थे थैंक यू, अब वो खुल के बोलते हैं सब। तो ये अगर स्किल्स हम लोग डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये हमारे बिहेव में अडॉप्ट हो जाती हैं, पार्ट बन जाती हैं, और हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, स्टूडेंट बन जाते हैं, जिसको सोसाइटी में एक अलग से पॉइंट स्टेज मिलता है, स्टेटस भी मिलता है।
employers to consider students' interpersonal skills an important factor in selecting candidates. इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स होने के बाद जब वो सारी इंटरपर्सनल स्किल्स वो सीख जाता है और जब वो कहीं इंटरव्यू सेक्शन के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, प्राइवेट जॉब है या फिर गवर्नमेंट जॉब है, एमएनसी कंपनी के अंदर जाता है, तो वो उसको बहुत हेल्पफुल रहती है उसको एज ए सेलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में प्रेजेंट करने के लिए. सो हेंस interpersonal skills increase chances of employability and successful career in life. तो कहने का पर्पज ये है, लाइफ, करियर, एम्प्लॉयबिलिटी, सो मेनी थिंग्स, सोसाइटी, सब हम इसके बेस पे सीख सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, आई एम यूजिंग द वर्ड लिसनिंग, नॉट हियरिंग. वही बात फिर आती है, लिसनिंग. तो अगर आपके टीचर्स आपको कभी नहीं बोलते हैं सुन नहीं रहे हो, they always say listen to me. वो एक लिसन होना, लिसन करना इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना. अदरवाइज आपके बाहर अभी आवाज आ रही है, आप ग्रुप के अंदर हैं तो कोई बच्चा आवाज कर रहा है तो वो हियरिंग है. अगर आप उसको सुनेंगे, हियरिंग, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज. तो दैट इज द कंक्लूजन मैम. और बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम दिया मुझे टू एक्सप्रेस माय व्यूज. और अगर मैं किसी काम आ सकता हूँ बच्चों के तो मेरा यही एक मोटो है. Just let me see if anybody have any questions. So जी. I think before asking any question, मैंने इतने सारे questions prepare किए थे, but सर ने मुझे मौका ही नहीं दिया. सर ने मेरे सारे Hey ma'am, queries. you can ask right now. There is no issue. You have already whatever points I have noted, आपने मेरे सारे question के answer बिना पूछे ही जवाब दे दिए. So I would just like to say if any of my viewers today want to put a question, especially today's preference goes to South India. सर हम एक महीने से कर रहे हैं एंड आज मॉर्निंग में एक रिक्वेस्ट आया साउथ इंडिया से कि जी मैम. मैडम आप नॉर्थ इंडिया वालों को ही क्यों पूछने देते हो. सो टुडे स्पेसिफिकली साउथ इंडिया एडुकेटर्स हैव द प्रेफरेंस. If you want to ask anything, please put it on the chat box. Neeta will unmute you and you can ask sir directly the question which you want to. Rachna Krishnamurthy sir. ma'am, may I Yeah. use take more of 5 seconds? Yes sir. अब ऐसा नहीं है, साउथ में मैं काफी विजिट किया और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट स्किल्स आपकी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती हैं. और यही वजह रहता है कि नॉर्थ ईस्ट प्लस साउथ, वहाँ चीजें आपको बाय डिफॉल्ट मिलती हैं. तो ऐसा नहीं है, वो बाय चांस हो चुका है कि ज्यादा चांसेस मिलते हैं. सर आपकी तरफ सब जाना चाहते हैं. सर एक्चुअली क्या है कि मैं नॉर्थ इंडिया काफी विजिट करती हूँ. सो That's why maybe it is coincidence. Yeah. So Krishnamurthy sir, you were putting some questions. So do you want to ask any questions, Krishnamurthy sir? Anybody wants to ask a question? Put it in the chat box. We will unmute you. Any queries? I think sir, we are sorted out because any questions you can raise your hand so that we will unmute you. No. Ma'am, Vimal Kumar sir wants to ask something. I'll unmute him. Yes Vimal sir, first time you have raised your hand. So देख लीजिए अभी नॉर्थ इंडिया वाले ही हाथ खड़ा कर रहे हैं. We have no choice. Krishnamurthy sir, from the beginning we gave you an option. Okay, yes Vimal sir, please. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Very good evening, sir. सर एक फनी सा क्वेश्चन माइंड में चल रहा था. जब आपने एक्सप्लेन किया लीडरशिप क्वालिटी, जी सर, तो एज ए टीचर हम क्लासरूम में क्या करते हैं कि जो बच्चे नोटी होते हैं, मोस्टली शरारती, right. उनको हम मॉनिटर बना देते हैं सर, राइट. क्लास मॉनिटर. जी. तो वो क्या उनकी लीडरशिप क्वालिटी को देख के बनाते हैं या अपनी स्किल को यूज करके बनाते हैं? Good question. सर यहाँ क्या रहता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी का पता लगता है कि आप कितने अच्छे लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है. तो वो बच्चों पे क्या रहता है कि ऑलवेज कीप द डेमन्स बिजी. एक वर्ड आपने काफी फेमस है, सुना होगा. अब यहाँ मैं बच्चों को डेमन नहीं बोल रहा हूँ कि बच्चे की एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए अब क्या रहता है, डाइवर्ट करना कंपलसरी है.
तो हम उसको एज ए मॉनिटर भी यूज कर सकते हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ एक ये कल्चर है कि मॉनिटर बनाते हैं, बट द मोटो इज टू प्रोवाइड हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ही क्या है कि उसके डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं, कि अब एक बार हम मॉनिटर भी बना सकते हैं, या उसको किस कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकते हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि इंटरचेंज होने के बाद इंटरचेंज कर सकते हैं नोटबुक्स। अब मैं बहुत सारी चीजें यूज करता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं, मैं मॉनिटर नहीं बनाता हूँ स्कूल में। अपने टीचर्स के साथ जो कम्युनिकेट करता हूँ, मैं बार बार यूज करता हूँ, मैं यूज नहीं करना चाहिए, हम यूज करना चाहिए, कि टीचर्स को बोला गया कि आप उसको मॉनिटर बना दीजिए जो होमवर्क करके नहीं ला रहा है। तो उसकी ड्यूटी रहती है, वीकली नोटबुक चेक होती है, तो उसकी ड्यूटी रहती है, यू हैव टू नोट इट डाउन द स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड द नोटबुक्स। तो मुझे लगता है कि वो अपना नाम सबसे ऊपर नहीं लिखेगा, Right. राइट। Thank you, तो sir. वो एक एग्जाम्पल है कि उसको मॉनिटर बनाना है। आज के टाइम पे तो सीबीएसई में इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे ना, जब हम सीबीएसई के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें सारे आउटरीच प्रोग्राम थे, इतने सारे लगाइए मोर देन 100 पॉइंट्स उसके अंदर। अगर हम उनको छोटा छोटा करके यूज करते हैं, नोट डाउन करते हैं, वो सब उसके अंदर इंक्लूड है। जी सर, आई थिंक आई हैव क्लियर्ड इट। Yes, sir. I Thank you, sir. Thank you. I think Krishnamurthy sir has raised his hand. So Krishnamurthy sir, do you have any question to ask, sir? Krishnamurthy sir, okay. Now I think he is not there, or maybe not. Ma'am, I am here, ma'am. Okay, Yes, sir. sir. Unmuted him. Sir, please go ahead. Good evening, Punya sir. गुड इवनिंग सर। Sir, I have two questions. What is the importance of interpersonal skills in psychology? सर इन And another साइकोलॉजी, thing, सर आई एम what is the लिसनिंग। difference between interpersonal and intrapersonal skills? Which one is important and why? Sir, if I correlate this interpersonal skills with the psychology, so it is mostly correlated with the emotional intelligence। अगर आप emotional intelligence में जाएंगे, तो ये mostly all the points are there, mostly वही points आपको मिलेंगे जो मैंने आपको कल, अगर आप थे उधर, तो आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं, जो पॉइंट्स आते हैं, टोटली दोज पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू द इंटरपर्सनल स्किल्स। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, इंट्रापर्सनल मींस आपके अंदर की जो आप असेसमेंट करते हो, अपने खुद की असेसमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रा। वही असेसमेंट, वही बिहेव जब आप बाहर के लोगों के साथ कंपेयर करके आप उनके साथ बिहेव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज interpersonal skills। जी। Okay, thank you. Yeah. Now we have Ananya Pandey who have raised her hand. So Ananya, do you have any question to us? Neeta, if you can see Ananya Pandey, please Yeah, unmute. unmuting. Yes. Okay. Sir, Rachna ma'am, Yeah. Yes, sir. Ananya Pandey is always connected with me on WhatsApp. Oh. Always. He is the Okay. students of our school in 8th class, and every day he send me SMS. One day I asked him to send SMS in English only, and whatever the language, whatever the errors are there, he always used to do it. Always send one SMS me per day. So Oh. he is developing the interpersonal skills in a very positive manner. Oh, wow. That's really great, sir. When I see his speaking, yeah, now he is smiling. That's really great, sir. Now we have one more. Anita, Yeah, Realme 6, ma'am. Realme 6. The name is not there. If you have a question, please you can ask. I'm unmuting. Okay. Yes, he's unmuted. Hello, Yes, please. sir. I had a question. Okay. Sir, how to overcome from distractions? How to overcome distraction? Sir, Yes. First of all, you have to
you have to adjust your seating plan, you have to prepare your seating plan, you have to fix a place in a room where you can sit properly. आपके पास टीवी है या आपके पास आसपास मोबाइल यूज करने वाला कोई बैठा है, तो आपको डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए ऐसी जगह बैठना चाहिए जहां आपको कोई दूसरा डिस्टर्ब ना करे और आपके पास डिस्ट्रैक्ट होने वाला मटेरियल ही ना हो। तो ये पॉइंट है। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ और इश्यू रहता है, यू कैन कॉल मी पर्सनली एंड यू कॉल text me personal on my personal number. I will resolve it out definitely. We have, I think, Geeta, we have given everybody the chance now who has raised their hands. I think Balan ma'am wants to ask something. Okay. I'll just Balan ma'am, unmute her. do you want to ask anything? Yes, I'm unmuting her, ma'am. Because it's 6:30, we will just, it will go off in just another 5 minutes. So, Yeah. Yeah. Very good evening, sir. Very good evening, ma'am. Yeah, my name is Anita Balan, and basically I'm a spoken English trainer and a corporate trainer as well, and a teacher also. So I could connect very well with what you were saying today. The session was very awesome, of course. I would just like to know that when it comes to children, okay, now for an elderly person, you can teach them the difference between the interpersonal and the intrapersonal. But when it Right. comes to the children, especially for the primary grade, you know, for maybe for the grade 1, 2, 3, it's very difficult to distinguish between the interpersonal and the intrapersonal. So how Right. do you actually develop them over there in the classroom? Like, especially, you know, when a child is too naughty or is very disobedient, or you cannot punish them because today the school is against all those things. So we have to be very polite and down to earth to make them come to that level, and you know, we have to teach them things. So how is it actually that you develop the interpersonal and the intrapersonal in the primary grade students? In hello, am I audible? yes, sir. Yes, very nice question, Balan ma'am. Actually, जो जूनियर क्लासेस हैं, उनको हम एक, अभी मैंने वर्ड यूज किया था, डीप प्रैक्टिकली हम लोग को लेना पड़ता है। हम उनको इंट्रापर्सनल सिखाना चाहते हैं, तो जो हमारे अंदर हम इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पेशेंस वर्ड एक यूज किया था, इंटरपर्सनल स्किल है। पेशेंस को अगर हम सिखाना चाहते हैं बच्चे को, बिकॉज ही विल लर्न हिमसेल्फ इटसेल्फ, तो वो पेशेंस अगर बच्चे की हम खुद बात को सुनेंगे, अच्छे से उसको टाइम देंगे, और जब वो क्वेश्चन और पूछने के बाद वो जब हमसे पूछता, अच्छे से टाइम देंगे, लिसन करेंगे, और उसके बाद वो सेटिस्फाई